नगर हवेली और दमन दीव के घोगला बीच में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और यहाँ आप देख सकते हैं पेंचक सिलट के मुकाबले। इन मुकाबलों का आज पहला दिन और खेलो इंडिया बीच गेम्स के अंतर्गत ये मुकाबले खेले जा रहे हैं और इन खेलों का ये दूसरा पड़ाव है। कमेंट्री टीम में जुड़ रही हैं फिलिया थॉमस। फिलिया, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब फाइट है किरणाक्षी किशोर येवले महाराष्ट्र और ऋषिता जी के बीच। नाउ यू आर वाचिंग किरणाक्षी किशोर येवले and she is going to perform Tungal. She is an international player. See, it is started. First Jurush is done. You'll see how beautifully she performs. Now empty hand is going on. आमतौर पे ऐसे आयोजन बहुत कम देखते हैं। जब ऐसे आयोजन होते हैं तो पूरा शहर, पूरा कस्बा, पूरा गांव उमड़ आता है उसको सफल बनाने में। और एक सफल आयोजन की तरफ शुरुआत हो चुकी है ओपनिंग सेरेमनी के साथ। और आज यकीनन जब दूसरा दिन आज इस खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के अंदर They have practiced so hard. Now the next athlete enter in the arena. We wish her all the best. She's fighting against one of the best player. Now she is bowing the judges, the referees. This is bowing the place, the art. Now she is ready. Yes, she is getting ready for the performance. You are watching Tungal. And everyone has to perform more than 100 steps, so it's not easy in this sand to perform this. And God has been doing makeup with the sand because it's not easy. Because you can see they're smiling because this art teaches us to smile. And in last few years, due to this beach games, it has become real big. किरणाक्षी किशोर येवले फेस ऑफ में जीतती हुई ये मेडल टैली में आगे बढ़ते हुए जीटी स्पोर्ट्स पर बीच वॉलीबॉल पुरुषों के वर्ग में जो मैच हम आपके लिए लेकर आए हैं, दमन एंड दीव 1 और गुजरात 1 के बीच ये मैच कोर्ट नंबर 1 में बस शुरू होने जा रहा है। It's been a hot afternoon here in Div on this Tuesday, 6th of January. As Southern Hilbert Daman and Div are serving. Now we will have the first point of the game going in favor of the Gujarat side. The boys in yellow. For a moment I thought it was said done, but it will be Kubavat Dev who will be serving. Issued well. Using his long hands. Has got such big reach, Kubavat. Good rally this. And that is it. That's the point. And set goes in favor of Gujarat. A comfortable set for the Gujarat boys. 21-7. As Kubavat Dev and his partner Aniket has impressed a lot. और शुरुआत होने वाली है सेट नंबर 2 की। सेकंड रेफरी हैं पी गोपीनाथ जो तमिलनाडु से आते हैं। क्या सेट नंबर 2 पे हैं? मेजबान टीम का भाग्य बदलेगा। क्या कमाल का कुबावत देव का ये ड्रॉप शॉट था। जैसे ही देखा कि दोनों खिलाड़ी मिड कोर्ट के पीछे हैं और फ्रंट कोर्ट पूरी तरीके से खाली है, फ्रंट कोर्ट पर प्लेस किया और अपने लिए एक अंक हासिल किया। ऐसा लग रहा है कि कहानी वही होगी, सिर्फ सेट बदल गया है। एंटिसिपेशन देखिए इस सेटअप पर। बढ़िया डिग, एक और अच्छा सेटअप है। और क्या कमाल का प्लेसमेंट। डाइविंग एफर्ट जरूर था वहां पर केशव की तरफ से,
लेकिन वन हैंडेड डिग का असर नहीं पड़ा। दोबारा देखिए, डाइव जरूर किया था लेकिन कंट्रोल डाइव नहीं था। 11-20. Gujarat on their way to win this game. Kubadev has really impressed, as Anand just mentioned. And that came off the net. A bit of luck for Gujarat, and as they seal this game with 21-11, winning by a set score of 2-0 in this men's match number 10 in men's beach volleyball here at court number 1, the Gogla Beach side as well. And then here is the match that is coming your way. Goa 2 against Telangana 2, and it's going to be Telangana who will be starting off with their serves. Here we go, first service coming, and it's point for Goa. Goa have Prabal Saban and Tejas Gons who are playing for them. बढ़िया कमबैक करती हुई टीम तेलंगाना, और कहा भी जाता है ना, कमबैक इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेटबैक। बेहतरीन खेलती हुई तेलंगाना, और देखिए कितना बढ़िया अटेम्प्ट, कितना बेहतरीन प्रयास। परिणाम जो भी हो, प्रयास आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। एक लंबी रैली यहाँ पर चलती हुई, तेलंगाना बना गोवा। तेलंगाना को मौका है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ताकत के साथ बॉल को खेला गया था, प्लेसमेंट गलत रहा, बॉल चली गई एंड लाइन के बाहर। Getting one more point, 17-20. Still Telangana have to get 3 points back to back. And that is it. That's the first point. That's the first set rather, going into the favor of Goa. And the man in form, Prabal Saban, winning that point and getting the set. जिस तरह से आंखों से काजल चुराकर हम ले जाते हैं, उसी तरह से गोवा इस सेट के साथ इस मैच को भी ले जाएगी। मैच शुरू होता हुआ, सेट शुरू होता हुआ, पहला सेट गोवा ने अपने नाम किया। देखिए कितना बड़ा संघर्ष, कितना डेडिकेशन यहाँ पर नजर आ रहा है। एक अच्छा बॉल सेट किया गया, लेकिन काफी नीचे था और गौतम उसे ठीक तरह से जज नहीं कर पाए। By getting the next 2 points, rather getting to the 21 points. Spike coming, and that has stayed inside. कुल चिराग को देखकर चिराग जलता है ना, उसी तरह से यहाँ पर प्रबल को देखकर अब तेजस भी खेलने लगे हैं। 20-12 मैच पॉइंट, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट दे बैठे टीम गोवा। गौतम, एक अच्छा बॉल सेट किया गया, बढ़िया खेल, कोई जवाब नहीं, बिल्कुल धरी की धरी रह गई। जीत की सुंदर यात्रा लिखते हुए टीम गोवा। What a spike to end this game and win the match for his team. One of the best of this game, as Goa winning this match here at court number 1. अगला मुकाबला तमिलनाडु बनाम ओडिशा के बीच है। तमिलनाडु 1 और ओडिशा 2। शुरुआत हो चुकी है इस मैच की, बढ़िया सेटअप है, अच्छा रिट्रीवल, कमाल का पहला पॉइंट हासिल करते हुए यहां पर एस भरत। इस मुकाबले में तमिलनाडु के पास एडवांटेज शुरू से है। जब आप नेट के अंदर 1 मीटर लाइन पर सेटअप करते हैं तो आपके पार्टनर के पास अच्छा मौका होता है स्पाइक लेने का। इस बार टच अच्छा था वी राजेश की तरफ से। That's how quickly this set has gone by. And that's how you place the ball. It's 21-5. What a commanding display of beach volleyball from this Tamil Nadu team. The medal contenders starting this first set in some style. सेकेंड रेफरी से सिग्नल मिलने के बाद सेट नंबर 2 की शुरुआत हुई और चलिए कहानी वही है। वी राजेश के एस स्मैश के जरिए तमिलनाडु ने सेट नंबर 2 में अपना खाता खोला है। एक मैच पॉइंट तो बचा लिया। नो मैंस लैंड पर गेंद गिरी है और इसके साथ ही, इस पॉइंट के साथ ही
तमिलनाडु ने बहुत आसानी के साथ 21-5, 21-7 से ये मैच जीत लिया है और ओडिशा को करारी शिकस्त दी है। गोवा और राजस्थान के बीच अगला मुकाबला आ रहा है, जो पुरुष वर्ग में मैच नंबर 13 है। धवास्कर और नितिन कृष्णात सावंत, ये गोवा 1 की टीम है। दूसरी तरफ राजस्थान 1 की टीम, जिसमें आरव और हर्ष चावरिया हैं। रेफरी है विजय मणिकंचन। तो मैच शुरू होता हुआ ये पहली सर्विस, बहुत अच्छी सर्विस, बेहतरीन शुरुआत। केवल देखिए, शुरुआत आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। वेल बिगन इज हाफ डन। 29 and Rajasthan again replying with another point here. Still they are not giving up here. देखिए, जीत का फैसला जब तक नहीं होता है ना, तब तक हार नहीं माननी चाहिए, और वो काम यहाँ पर बिल्कुल किया जा रहा है राजस्थान द्वारा। राजस्थान बनाम गोवा के बीच 19-9 फासला बहुत बड़ा है। गोवा को चाहिए सिर्फ 2 पॉइंट इस मैच को जीतने के लिए। पहला सेट तो गोवा ने जीत ही लिया है, और देखिए यहाँ पर मैच को जीत लिया टीम गोवा ने। बीच सॉकर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। पहला मुकाबला जो आप डीडी स्पोर्ट्स पर देखेंगे बीच सॉकर का, गुजरात बनाम हिमाचल प्रदेश, ये महिला वर्ग की टक्कर होगी। Their number 8 jersey who is starting the proceedings for them. Prerna Datta. As the match has started, first period. Gujarat in yellow and Himachal in blue. Gujarat on the attack from the left side. And block coming and safely into the hands of the Himachal goalkeeper. Good play this from Gujarat. Lot of space to shoot, but really good goalkeeping from Praveen Kumari. Came out so quickly out of the blocks, but it will be the first goal for Gujarat in the first minute of the match. And it's their number 10 jersey, I think Bhumisha, got the last touch. As Gujarat has started off with the bang. It was really good pass and he was totally unmarked there, Bhumisha Dravid, and gets the first goal in the first minute of the match. फुटबॉल का नजारा पेश करते हुए अच्छा थ्रो, एक और गोल। अनमार्क थी वहां पर, बिल्कुल गोल पोस्ट के ठीक सामने अनमार्क। गुजरात की नंबर 7 नजर आई है वहां पर, रफीक भाई सिंधी। पहले पीरियड में ही गोलकीपर का बाहर जाना कहीं ना कहीं फिटनेस पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। यहाँ एक और मौका था, लेकिन अपने शॉट को डायरेक्ट नहीं कर पाई, और जिस कारण पहले पीरियड के समापन की घोषणा हो रही है। तो पहले पीरियड की समाप्ति के बाद गुजरात ने 2-0 की बढ़त बना रखी है। पहला गोल भूमिशा द्रविड़ ने किया था और दूसरा गोल मिसीबा बानू रफीक भाई सिंधी ने किया था। तो इन 2 गोल के सहारे गुजरात ने 2-0 की बढ़त बना ली है हिमाचल प्रदेश के अगेंस्ट। अब तक बहुत ज्यादा बचाव का मौका मिला नहीं है, लेकिन काफी कॉन्फिडेंट गोलकीपर। चलिए, दूसरे पीरियड की शुरुआत होती हुई लेफ्ट फ्लैंक से अटैक आता हुआ, माइनस जरूर किया था लेकिन सपोर्ट नहीं मिल पाया वहां पर, और थोड़ा सा तेज खेलती नजर आ रही है दूसरे पीरियड के शुरुआती मिनट में हिमाचल प्रदेश की टीम। और ये तेजी चाहिए उन्हें, अगर इक्वलाइजर तलाशना है तो राइट फ्लैंक से अंदर लेकर आने की कोशिश, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जैसे ही गेंद आपके पास आए, सिर्फ क्लियरेंस के लिए गेंद को शूट करना, किक करना, फिर आपके लिए गोल करना मुश्किल हो जाएगा। बढ़िया बचाव एक बार फिर प्रवीण कुमारी की तरफ से, रिबाउंड पर गोल आ जाएगा, इस बार लेफ्ट फुटर। पहला प्रयास बचाने में कामयाब हुई, दूसरा गोल है इस मैच में मिसबा बानू रफीक भाई सिंधी की तरफ से। 3-0, and with the way this game has gone, I believe Gujarat will be eyeing more goals. Here is another chance for the strike, and it is the 4th goal coming. 4-0 for Gujarat. Right now it's one-way traffic, and that should be another goal. Yes, it is from that left post and then inside the net. 6-0 is the scoreline. Gujarat getting another goal as the substitute Thakur
Bhavnaben that has scored that goal for Gujarat. साइड लाइन से गेंद बाहर गई है और ज़्यादातर अवसरों पर हम देख रहे हैं कि गुजरात की टीम के पास जब अवसर आ रहा है तो वो साइड लाइन थ्रो ले रही है, और जबकि हिमाचल प्रदेश के पास जब मौका आता है तो वो साइड लाइन किक लेते हैं। लेफ्ट फुटर, एक और गोल आएगा। और वहां पर मौजूद कौन है? वहां पर मिसीबा बानू, रफीक भाई सिंधी, उनका भी हैट्रिक कंप्लीट होता हुआ। देखिए, पहला टच और दूसरे टच पर फिनिश किया। गोलकीपर प्रवीण कुमारी अपनी लाइन से काफी आगे आई थी और कोई भी गोलकीपर नियर पोस्ट पर बीट होना नहीं चाहता फाइनल की तरफ। उससे पहले वो हर खिलाड़ी को टेस्ट करना चाहती हैं और ये काफी अच्छी सोच है। और जो एक पूरा स्क्वाड आया है उस स्क्वाड को भी खेलने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा दिशाहीन खेल अब देखने को मिल रहा है गुजरात की तरफ से, और ऐसा तब होता है जब आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। चलिए, दूसरे पीरियड की समाप्ति होती हुई और दूसरे पीरियड के बाद 7-0 का स्कोर है गुजरात के लिए। Gujarat and Himachal. Himachal will be starting off with the kick-off, looking to score the goal. Was there a touch from Riya Jetwa? Yes, the corner has been given from the referee on the sidelines. कम से कम मिडफील्ड और अटैकिंग थर्ड के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है। बढ़िया कॉर्नर, लेकिन उससे भी उम्दा बचाव रिया की तरफ से आता हुआ। शॉट ऑन टारगेट जरूर था और इस बार एक और गोल का अवसर है। गोलकीपर अपनी लाइन से काफी आगे बचाव किया था और उसके बाद कप्तान सूर्या गई थी। एक और गोल नंबर 9 इस बार उस नैरो एंगल को कन्वर्ट करने में कामयाब हुई है मिसबा बानू, रफीक भाई सिंधी। दोबारा देखेंगे क्योंकि राइट फ्लैंक से ये गोल आया है। बहुत अच्छा वहां पर स्किलफुल फुटबॉल का नजारा, मौका बनाया था जरूर, डिफेंडर अभी भी मौजूद, काफी स्लो डिफेंस का नजारा है। ओह, भूमिशा द्रविड़, और इसके साथ ही इस मैच के समाप्ति की घोषणा होती हुई। गुजरात ने इस मैच में हिमाचल प्रदेश को 9-0 के बड़े अंतर से मात दी है। और देखिए, लास्ट मोमेंट पर रिया को बाहर बुला लिया था और सब्स्टिट्यूट गोलकीपर लो पायल अंदर आई थी। गुजरात ने दर्ज की है हिमाचल प्रदेश के अगेंस्ट और ये जीत का जश्न है, लगातार दूसरे मुकाबले में जीत का जश्न है। Delightful, deep-hearted DU, where people are warm, welcoming and wide-hearted. Of course, DU is known for its tourists, being a tourist destination and its picturesque landscape. And the Khelo India Beach Games have reached here, and the Kabaddi matches are about to begin. And we are just about to get started with the first match, Andhra Pradesh versus Uttar Pradesh. The players from Uttar Pradesh taking their positions, led by Captain Anshul. It's a very interesting story. Last year they were here, and Anshul was also a part of the team which failed to get through to the semi-finals. After that, they went home, conducted a whole new open trial which had players from each of the 75 districts of Uttar Pradesh, and then they conducted a fresh trial. Anshul, the captain who's currently raiding, is the only standing player, and now you know why. Straight away fetches the points, a successful raid, and Uttar Pradesh are up and running. बिल्कुल, और यहाँ पर एक अंक अर्जित कर लिया है और अब फिलहाल यहाँ पर जी लक्ष्मण रेड करने के लिए आए हैं। अब देखना होगा, जी लक्ष्मण नहीं, टैकल कर लिया है यार, बिल्कुल एक अंक और यहाँ पर उनको प्रदान किया जाएगा। तो यानी कि मुकाबले की अगर हम बात करें तो बिल्कुल दोनों ही ओर से मुकाबला बहुत ही अच्छा चलता हुआ। उत्तर प्रदेश ने 2 अंक अर्जित कर लिए हैं। पहला उन्होंने रेड के दौरान अंक लिया था और यहाँ पर अब डिफेंड जब किया जा रहा है तब पकड़ मजबूत, आंध्र प्रदेश के पक्ष में जाएगा ये अंक। That was Kultar, the raider, wearing number 4 on his back, 17.5 years of age, has lofty dreams, and now chance for Andhra Pradesh to level things up. Chance for the captain. Oh, he wanted to jump over the defender there. Captain Anshul now with the raid, trying to take his time once again. This is where he faltered the last time he conceded a point. And once again, he's trying to do it again, and this time around, he does it well, wins a point. But I must tell you that the referee might want to have a word with him.
बिल्कुल बड़ी तेजी से उन्होंने एक को तो टच कर लिया था और पीछे वो कोशिश कर रहे थे दूसरे को भी, ये देखिएगा कि दूसरे को भी टच कर दे। उनके पीछे बैक पर वो टच करना चाह रहे थे मगर वो नहीं हुए। And still, Captain Anshul's body language exudes determination and dutifulness. And now they've sent one of the defenders to raid. It is Venkateshwara Reddy, who specializes as the left corner. Over here, he has gone for a raid because you know that the game's almost done. Comes back with an empty raid and hence the point goes to Uttar Pradesh. Remember, every raid has to be productive. And now Nikhil, beg your pardon, that's Abhishek, who'll get a chance from Team Uttar Pradesh. So that tells you that the game is done from both teams' perspective. They're just trying out things now. And Abhishek looks like is also going to return with an empty raid. बिल्कुल, और अंतिम समय व्यतीत कर रहे हैं। ये देखिएगा लास्ट एक अंक गवा जरूर दिया मगर आप ये देखिए 10 अंकों से बढ़त बनाते हुए इस मैच को पूर्णतः अपनी गिरफ्त में ले लिया उत्तर प्रदेश ने और विजय श्री की ओर अग्रसर हुए, एक दूसरे के साथ गले लगते हुए। और स्वाभाविक है अपनी इस जीत का जश्न मनाना भी। You can see how close the first half was, but in the second half, Uttar Pradesh surged ahead like they put their foot on the gas pedal and never looked back. They won 2-2, very close to sealing the semi-final spot now. Rajasthan versus Delhi, match 6 of Beach Kabaddi Men's from Khelo India Beach Games 2026 DU. Remember, 4 players on the court to start things off, and of course 2 are substitutes on your screen. As the left in is Jai Bhagwan, and they are on the first point. Easily done, no problems whatsoever. So Rajasthan have started on the right foot, and now Sachin, well-known all-rounder, wins the point very, very easily for his team. Remember, he is a gold medalist at the Asian Games. राजस्थान की जो धरती है वो जानी जाती है आन बान शान के लिए और यहाँ पर राजस्थान देखिए बढ़िया शुरुआत की थी, लेकिन इस बार राजधानी एक्सप्रेस ने ब्रेक लगाया है। अपनी ब्रेक जो लगने वाला था उसको एक्सेलरेट किया। ये देखिए पूरे तरीके से चौंका के रखा, बढ़िया जंप किया, लेकिन ये है दिल्ली के बाकुरे। दिल्ली 4 पर पहुंची है इस अंक के साथ और बढ़िया यहाँ पर रेड साबित होते हुए दिल्ली के हिमांशु। Jai Bhagwan now ready for the next raid, taking his time, ensuring that he gets the right footing. Has been dashed, but he's able to get through to the midline. And he gets 2 points this time around. So not committing the mistake that the previous raider committed on the previous occasion. सचिन अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानते हैं, डॉज करना जानते हैं, छकाना जानते हैं और लाइन को टच करना भी जानते हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पर 1 अंक या 2 देखना होगा। जी हाँ, 2 अंक का इजाफा और होते हुए यहाँ टीम राजस्थान के लिए देखिए 1 और उसके बाद ये फंसे थे यहाँ पर सावन। यहाँ कोशिश दिल्ली की पूरी रहनी चाहिए कि बढ़िया अपना खेल दिखाएं। फिलहाल 52 पर है राजस्थान, 24 पर दिल्ली और ये है दिल्ली के देवांशु। देवांशु को मौका दिया गया है, क्या निकल पाएंगे यहां से। बहुत ही इजीली वापसी की है, 1 अंक यहां पर दे दिया गया है राजस्थान को, क्योंकि ये एम्प्टी रेड काउंट की जाएगी। आपने कुछ टच नहीं किया तो डू और डाई में आपको टच करना ही होगा, इसलिए आप अंक गवाएंगे। अगर हासिल नहीं करेंगे तो यही है बीच कबड्डी का जादू। Well, you're not in the lead. Why are you doing empty raids? That tells you that the morale is down. और अब 1 मिनट से भी कम का समय बाकी है इस मुकाबले में और यहाँ दिल्ली की टीम चाहेगी कम से कम आखिरी सेकंड्स में 1 या 2 पॉइंट लिए जाएं। दिल्ली के सवीन, हालांकि बॉडी लैंग्वेज यही कह रही है कि थकावट नजर आ रही है चेहरे पर।
फिलहाल एक अंक जुटाया यहाँ पर सवीन ने दिल्ली के लिए। 31 पर पहुंचेगा स्कोर दिल्ली का। और क्या यह आखिरी रेड होगी इस मुकाबले की या और मौके बनेंगे? राजस्थान के चेतन कुमार चौधरी फिलहाल 10 काउंटडाउन स्टार्ट देख रहे हैं, टाइम पास करें। और अब ऐसा लगता है कि लास्ट ही रेड है। अगर ये एम्प्टी भी रहती है उसके बाद भी कोई खास नुकसान होने वाला है नहीं। दिल्ली को एक अंक जरूर मिला है इस लास्ट रेड पे। 32 पहुंचेगा स्कोर दिल्ली का। और सेकंड हाफ की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए तो राजस्थान 57 और दिल्ली 32। क्या बात है, शानदार प्रदर्शन यहां पर टीम राजस्थान का। और ये देखिए राजस्थान ने मुकाबला जीत लिया है